السلام علیکم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئرز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 منتھس کے لو انفلیشن نمبرز آ سکتے ہیں جنوری کے اندر۔ کیا وجوہات ہیں اس کی، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ اوورآل کیا اس حکومت نے انفلیشن پہ قابو پایا ہے، ابھی کیا اقدامات ہیں کرنے کے، انفلیشن جنم کیسے لیتی ہے، دونوں سپلائی سائڈ ڈیمانڈ سائڈ کے کیا میکینکس ہیں جو کہ کار فرما ہے، اس کے اوپر آج ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر اقدس افضل صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں، بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں فاروق افضل صاحب جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں، بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ دین وی ہیو ود اس شمس الاسلام خان صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے KCCI سے ان کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ناظرین، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ، آپ کے پیسے کی قیمت دو طریقے سے کم ہو سکتی ہے، ایک تو ڈیمانڈ سائڈ، دوسری سپلائی سائڈ۔ اگر تو آپ کے پیسے کی سکت جس سے آپ اشیاء خرد و نوش خریدتے ہیں وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم گر رہی ہے، مراد یہ کہ اجناس کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو بھی آپ کی قیمت خرید اس میں کم ہوگی۔ دوسری جانب اگر آپ یہ پیسہ کسی بینک میں رکھواتے ہیں اور بینک آپ کا یہ پیسہ کسی اور کو ادھار دیتا ہے اور اس سے مزید پیسہ جنم لیتا ہے جس کو ہم منی سپلائی کہتے ہیں، تو منی سپلائی کے بڑھنے سے بھی اوور دا لانگ ٹرم اس پیسے کی کسی بھی چیز کو خریدنے کی صلاحیت وہ گرتی چلی جاتی ہے۔ تو دو طریقوں سے قیمتیں آپ کو متاثر کرتی ہیں، ڈیمانڈ سائڈ، سپلائی سائڈ۔ ناؤ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ لیٹسٹ ڈیٹا دیکھیں SPI کا تو آل ٹائم ریکارڈ لو کے اوپر آ چکا ہے۔ یہ SPI کا لیٹسٹ فگرز جو ہمیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ملے ہیں، اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں SPI انفلیشن کے ایئر آن ایئر جو ابھی لیٹسٹ ویکلی ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے لاسٹ ویک کا، تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں گریجول ڈکلائن پچھلے 7 سے 8 مہینوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ واٹ از ایکچولی ہیپننگ، جو گزشتہ کچھ عرصے پہلے جو فوڈ پرائسز میں اضافہ ہوا تھا، انینز کی پرائسز، ٹومیٹوز کی پرائسز اور دوسری اشیاء خرد و نوش کی پرائسز جو بڑی تھیں، اس میں استحکام آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ کیوں آیا ہے؟ بیکاز سپلائی سائڈ جو شاک تھا لوکس کی وجہ سے اور آپ کے جو ایگریکلچر آؤٹ پٹ گرنے کی وجہ سے اور فلڈنگ کی وجہ سے جو پچھلے سال ہم دیکھ رہے تھے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا فرسٹ ہاف ڈسرپشن دیکھی تھی، وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ گریجولی انفلیشن نیچے آ رہی ہے، دیٹ از سپورٹنگ اسٹیٹ بینک اسٹانس ٹو کیپ دا مانیٹری پالیسی کانسٹنٹ۔ سو سب سے پہلے میں اقدس صاحب کی طرف آؤں گا۔ اقدس صاحب، قیمتوں کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یور ٹیک آن دیٹ۔ دیکھیں، میرا تو جو تھینک یو فار دیٹ کویسچن اینڈ تھینک یو فار دا انوائٹ۔ میں نے ڈیٹا وغیرہ دیکھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انفلیشن از آن دا رائز۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیچے آ رہی ہے، لیکن میں جو ڈیٹا اور جو ٹرینڈز میں دیکھ رہا ہوں اس میں لگ رہا ہے کہ انفلیشن از آن دا رائز، اور اسپیشلی جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے، یعنی کہ فوڈ اور انرجی کی جو پرائسز ہیں۔ کور انفلیشن شاید اتنا نہیں بڑھ رہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن فوڈ پرائسز اور انرجی پرائسز، آپ کو بھی پتہ ہے کہ حال ہی میں انرجی پرائسز کو پھر سے انکریز کیا گیا، اور جب بھی انرجی پرائسز انکریز ہوتی ہیں دیر از اے پاس آن افیکٹ۔ تو میں ان کو فوڈ پرائسز کو اسپیشلی اوپر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اس میں 3 فوڈ کموڈیٹیز ان پرٹیکولر، شوگر، ویٹ اینڈ آئل۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لیٹر آن ان دا پروگرام آئی کین ٹیل یو کہ اس کے پیچھے کون سے میکنزمز آپریٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو میرے پاس جو ریسرچ آ رہی ہے اس کے مطابق تو جو قیمتوں میں گراوٹ ہے وہ کچھ ویجیٹیبلز میں 34%، پوٹیٹوز کی قیمت میں کمی متوقع ہے، انینز کی قیمت میں اگین 28% کمی متوقع ہے۔ تو ایکچولی اٹ ول بی اے بیلنسنگ ایفیکٹ، کچھ آئٹمز اوپر جا رہے ہیں، کچھ نیچے جا رہے ہیں ود ان دا فوڈ سیکٹر، ازنٹ اٹ؟ دیکھیں، آپ جو میرے خیال میں جو ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں جو کمی کی بات کر رہے ہیں، آئی تھنک وہ پچھلے مہینوں میں پرائسز اتنا اوپر چلی گئی تھیں سڈنلی، بیس افیکٹ، تو وہ جو بیس لائن افیکٹ ہے وہ ان پلے آ گیا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے کمی آ رہی ہے۔ پرائسز آف فوڈ ان پاکستان آر اسٹل ویری ہائی ان دا انٹائر ریجن۔ اسٹیٹکلی انالائز کریں اگر تو ہائی ہیں، لیکن اگر جو پریویس ہائی میں اگر 200 روپے کا آپ کو ٹماٹر مل رہا تھا اب سے 6 مہینے پہلے، تو اس کا ایفیکٹ تو پڑے گا نا یہاں پہ، جب وہ 200 روپے کا نہیں ہے، وہ آ گیا ہے 100 کے قریب، تو وہ ایک بیس ایفیکٹ تو آئے گا۔ فاروق صاحب، آپ کا تھوڑا سا ویو پوائنٹ ذرا بتائیے قیمتوں کے بارے میں، کیونکہ یہ دس از ون آف دا بگیسٹ کنسرن رائٹ ناؤ فار گورنمنٹ، بیکاز اگر تو عمران خان صاحب کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کا کیس بنا کے رکھنا ہے کہ لو ہے، تو انفلیشن دے ہیو ٹو کنٹرول سم ہاؤ۔ یس سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی باقر بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فوڈ کے آرٹیکل بھی ان کی پرائسز بڑھتی ہیں نا، جو ہمارا سسٹم ہے نا، اس کی جو بیچ میں جیسے سبزی منڈی، اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو جو آڑتی سسٹم ہے نا، جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم خراب ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو آڑتی کا رول ہے وہ ایک خام خواہ کا رول ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے ایک دوست ہیں جو بزنس مین ہیں اور جو ایگریکلچرسٹ ہیں،
تو وہ ایک دفعہ گئے اپنے 17 من کا وہ جو گرین پیاز ہوتا ہے وہ لے کر گئے. تو آڑتی نے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اچھا اس وقت 40 سے 50 روپے کلو بک رہا تھا وہ مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے 2 روپے کلو بیچا وہاں پر آڑتی کو, ٹھیک ہے, اور اب اس کی پرائس آگے مارکیٹ میں کیا ہے 40 سے 50 ہے. اب آڑتی کے بعد اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں, پتھارے دار ہوتا ہے, پھر وہ ریٹیلر کے پاس جاتا ہے. تو یہ ایکچوئل جو سسٹم ہمارا ہے نا, آپ کو بیچ کے بندے ختم کرنے پڑیں گے, وہ ختم کرنے پڑیں گے, جس کی وجہ سے پرائس کی ہائیک ہوتی ہے. دس از آلویز آرٹیفیشل ٹو می ایکچولی. یہ آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ بھی ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہم نے ڈسکشن کی ہے جس میں ہم نے پوچھا فوڈ ایکسپورٹر سے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ کراچی کی فوڈ منڈی میں ایک اگر کینو کی پیٹی 500 کی ہے تو شہر میں آنے تک وہ 1200 کی ہوتی ہے اور ڈیفینس جانے تک وہ 2000 کی ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو مڈل مین کا جو رول ہے اور جو پرائس جیک اپ ہے, اس کو کنٹرول آپ نہیں کریں گے تو فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹکس اور جو ادارے ہیں شماریات کے وہ تو لے لیتے ہیں ریٹیل پہ, صحیح ہے, اور وہی کہتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. شمس صاحب, واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں جی, آپ کو پہلے تو میں پرائم منسٹر صاحب کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے جو ہے انٹرسٹ ریٹ کم کیا, اس کے بعد پھر انفلیشن بھی کم ہونا شروع ہو گیا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جائے تو انفلیشن بڑھتا ہے, نہ کہ کم ہوتا ہے. دنیا میں کم ہوتا ہے یا کہ یہاں بڑھ جاتا ہے. اور جیسے جیسے وہ انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے آگے بھی مہنگائی کم ہو سکتی ہے. لیکن فوڈ سائڈ پہ ہمارے پاس بہت سارے زیادہ ایشو ہیں, کیونکہ سپلائی سائڈ ہماری بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہوئی ہے. ایگریکلچر کی اگر آپ گروتھ دیکھیں اوور دا ایئرس تو آپ کی بہت زیادہ کوئی انکریجنگ نہیں رہی, جس کی وجہ سے آپ کی مین کراپ ویٹ جو ہے وہ شارٹ ہوئی. لاسٹ ایئر بھی شارٹ ہوئی, اس سے پہلے آپ دیکھیں 2-3 سال سے ہم ویٹ کا جو کرائسس آ رہا ہے, اور ساتھ ہی پھر آپ کا جو ہے شوگر کی کرائسس آ رہی ہیں. تو یہ انڈیکیٹس کرتے ہیں کچھ سسٹم کو جو اسٹرکچرل پرابلم ہمارے یہاں اوور دی ایئرز بلڈ کی گئی ہیں. مطلب یہ کہ آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا کہ اس کی پروڈکشن بڑھائیں. پھر جیسے آپ بات کر رہے تھے گروور کی کہ 2 روپے دیے اور وہاں 40 میں بکتا ہے, تو گروور سے جب آپ سستا لوگے تو نیکسٹ ایئر گروور اس کو نہیں لگائے گا. میں پوٹیٹو کی آپ نے بڑی بات کر رہے تھے ابھی, پوٹیٹو جو ہے 2 سال پہلے 5 روپے کلو ہوا, اور اس کے بعد اس سے کم ہو گیا کہ گروور کی جو ڈگنگ کاسٹ تھی وہ کم ہو گئی, اور اس نے نیکسٹ ایئر پوٹیٹو کو کلٹیویشن کم کی, اور آپ نے 70 اور 80 روپے کلو تک آلو خریدا, اور ابھی بھی وہی چیز چل رہی ہے. تو ہمارے ہاں ایک بڑی خرابی ہے سسٹم میں کہ ہمارا جو سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو انفارچونیٹلی اکانومسٹ نے کم اور سی ایز نے زیادہ کیا ہے. میں یہ بتاتا ہوں جی, آپ کا گروور جو ہے وہ آپ کے صرف کنزیومر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, آپ کا گروور جو آپ کی اس سیکٹر میں ویلیو ایڈیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان میں ویلیو ایڈیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر پوٹیٹو آپ گرو کر رہے ہو زیادہ ہو رہا ہے تو پوٹیٹو آپ کنزیوم کر رہے ہو, لیکن آپ نے کیا پوٹیٹو کا فلاور بنایا جو دنیا میں بہت اچھی $400-500 کے اوپر بکتا ہے, جبکہ پاکستانی پوٹیٹو ہارڈلی $150-200 میں ایکسپورٹ ہوا ہے. تو یہ جو بیکورڈ آپ کی انٹیگریشن اور بیکورڈ آپ کے جو بینیفٹ پاس آن ہونا تھا وہ پاکستان میں کوئی 60s-70s کے بعد تقریباً ختم ہو گیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے پاس گروور ایک سال کراپ اچھی اگاتا ہے, نیکسٹ ایئر اس کی کراپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کو مرچوں کا آپ کو میں ایک مثال دوں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا, 36,000 روپے من ہو گئی ہے. جو 200 روپے کلو مرچ تھی آج وہ ہول سیل میں 900 سے 1,000 روپے کلو پہ پہنچ کی ہے, اور اس کا پاؤڈر جو ہے چلی پاؤڈر پی بی ایس جو دکھا رہا ہے کہ 200 گرام 300 روپے کا پڑ رہا ہے. تو یہ انگریڈینٹ ہے کچن کا بیسک انگریڈینٹ ہے کہ جس کے بغیر آپ کا کھانا نہیں پکتا. تو اس چیز کو بھی امپروو کرنا تھا, وہاں پر ہم نے ریسرچ سائٹ سے کوئی کام نہیں کیا, اور بہت عرصہ تک ایکسپورٹ چلی کی بین رکھی. بہت ہی ویلڈ پوائنٹ بتائیں ناظرین. اگر کچھ سلائیڈیں اگر دکھا سکیں آپ ہمیں, ہماری پروڈکشن ٹیم, کہ کچھ ویٹ کی پروڈکشن, شوگر کین کی پروڈکشن, اگر رائٹ فرام دی سیکنڈ سلائیڈ اگر ہم چلیں تو ہمیں بہتر طور پہ پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے جو اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی میں شیئر اگر آپ اوور آل ایگریکلچر کا دیکھیں تو 20 سے 22% رہا ہے, اب وہ گر کے 19% ہو گیا ہے. ایکچولی لیبر فورس یہ 42% امپلائی کرتا ہے اوور آل پاکستان کی لیبر فورس کا, تو 40 سے 45% لیبر فورس مل کے 19 سے 20% آپ کے آؤٹ پٹ کا پروڈیوس کریے. دیٹ شوز کہ ییلڈز کے اندر کچھ پرابلم ہے, پروڈکٹیوٹی کے اندر پرابلم ہے. اگر کراپس کی طرف جائزہ لیں, اگر دوسری سلائیڈ پہ ہم چلیں تو ہمیں کراپس میں اگین کافی ڈکلائن نظر آ رہا ہے اوور آل. اگر کاٹن کی بھی دیکھیں, کاٹن کی کراپ بھی ڈکلائن ہو رہی ہے. اگر دوسری کراپس کی طرف بھی ہم نظر ڈالیں تھوڑی سی تو ہمیں پتہ چلے گا نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر کہ دوسری کراپس بھی, ویٹ کے اوپر بھی اگین ڈکلائن نظر آ رہا ہے کہ گریجول ڈکلائن ہے. پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, لیکن پروڈکشن میں ڈکلائن دیکھا جا رہا ہے. اگر دوسری سلائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں فردر شوگر کین کی طرف بھی نظر ڈالیں تو شوگر کین میں بھی ڈکلائن نظر آ رہا ہے. آلدو جو ایریا انڈر کلٹیویشن ہے وہ شوگر کین میں زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ جا رہا ہے کاٹن سے. کاٹن میں ایریا انڈر کلٹیویشن کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ جا رہا ہے شوگر کین کے اندر. لیکن پھر بھی آپ کی ایفیشنسی کا یہ عالم ہے کہ ایفیشنٹ پروڈکشن آف دیز ایگریکلچر پروڈکٹس ہم نہیں کر پا رہے ہیں.
दैट्स अगेन अ की क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इनकी प्रोडक्शन साइड पे, जिस तरह शमसुल इस्लाम साहब ने भी आपको बताया कि यहाँ पे फार्मर की इनकम में डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सप्लाई चेन इंप्रूव करना आपके लिए बहुत जरूरी है और एफिशिएंसी नहीं लाएंगे. सो अगर साहब थिंग्स आर वेरी क्लियर हियर कि प्रोडक्शन साइड पे इज अ बॉटलनेक जिसको सॉल्व करने की जरूरत है. जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा. देखें, कोई भी कंट्री अगर एग्रीकल्चर पे या एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट पे रिलाई करती है तो वो कभी एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं कर सकती, जिसका मतलब है कि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर नहीं जा सकता. इसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे आप फ़र्ज़ करें कि हमारे ट्रेडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स और आपकी कंट्री में इनकम्स ऊपर जाती हैं. एक सेकुलर ट्रेंड है. जब इनकम्स ऊपर जाती हैं तो आपकी कंट्री में लोग किस किस्म की चीज़ें डिमांड करते हैं बाहर की कंट्री से. आपके आईफोन्स आते हैं, नई गाड़ियों के मॉडल आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और आप जो चीज़ बेच रहे हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर के लिए वो बेसिकली है व्हीट, शुगर एंड व्हाट हैव यू. जब आपके ट्रेडिंग पार्टनर में इनकम्स ऊपर जाती हैं तो वो उसकी कंजम्पशन को डबल नहीं कर लेते, क्योंकि उसकी जो कंजम्पशन है दैट इज कंस्ट्रेन्ड बाय द पॉपुलेशन साइज एंड डेमोग्राफिक्स. आपकी अपनी कैलोरी इनटेक वो एकदम डबल तो नहीं हो जाती. तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी जैसी कंट्रीज की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज की टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि हम कितना कंपेटिटिव हैं अपनी एक्सपोर्ट्स में, वो इम्प्रूव नहीं करती. तो देखा ये गया है. और एक और पॉइंट जो मैं भूल ना जाऊं, मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप अपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं, आप सिर्फ ज़र मुबादला नहीं कमा रहे हैं, आप अपने वाटर को, जो आपका एम्बेडेड वाटर है उस इजनास के अंदर, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. और हम एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं, तो हमें बिल्कुल भी इस सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स यानी इस किस्म के एक्सपोर्ट्स पे नहीं रिलाई करना चाहिए. अच्छा, ये बहुत ही की पॉइंट है, बिकॉज वाटर की जो इनटेक है वो बहुत सी क्रॉप्स ऐसी हैं जो नई टेक्नोलॉजी की, उनमें भी वैरायटीज हैं. जो पाकिस्तान वो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. That's right. वो रिलेटिवली उनके बीज इनएफिशिएंट हैं, आउटपुट यील्ड कम आती है पर एकड़, और आपकी एक्सपोर्ट मार्केट भी कम है. शुगर केन वर्सेस व्हीट भी आप देख रहे हैं. एक वो भी मैं फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगा कि यहाँ दुरुस्तगी की बेहद जरूरत है. अभी कुछ हमारे पास एग्रीकल्चरिस्ट थे तो वो यही बता रहे थे कि 5 टाइम्स प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज कर सकते हैं सिर्फ बीज अच्छा मंगवा के, सिर्फ बीज अच्छा मंगवा के. बाय द वे, नथिंग एल्स, यू जस्ट ब्रिंग गुड सीड एंड यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, फिर प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे. देखिए मैं पाकिस्तान में शुगर के सख्त अगेंस्ट हूँ. हमें शुगर प्रोड्यूस करनी नहीं चाहिए, इतनी बड़ी माफिया है ये. पाकिस्तान देखिए, शुगर इज नॉट अ स्टेपल फूड कि आप नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे. वी डोंट नीड शुगर, वी कैन इंपोर्ट इट. अगर ये 500 रुपये किलो भी हो जाएगी ना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. उससे आप मिठाइयाँ बनाते हैं ना, आपको जरूरत क्या है. देखिए पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉटन क्रॉप्स को कम किया और अच्छी जगहों पे जाके शुगर कैन लगवा दिया अपनी शुगर मिलों के लिए, उठाई मिलें वहां लगा दी. अब जो वहां के लोकल जो फार्मर्स थे उन्होंने गन्ना लगाना शुरू कर दिया बजाय कॉटन के. वो इलाके इतने अच्छे हमारी कॉटन के लिए. आज हम कॉटन, पहले हम चौथे बड़े प्रोड्यूसर थे, आज हम 5वें नंबर पे आ गए. ब्राजील चौथे नंबर पर आ गया. अब इंडिया इस तो नंबर 1 पर आ गया. देखिए 60 मिलियन बेल्स उगा रहा है, 50 मिलियन जो है आपका वो चाइना उगा रहा है, यूएस 40 मिलियन उगा रहा है, आपका 30 मिलियन पे ब्राजील चला गया. हम कहाँ हैं अभी? 10 मिलियन हार्डली. हमने आज तक अभी अब हार्डली, लेकिन एक दफा सिर्फ हमने बम्पर क्रॉप ली, वो भी 1986 में ज़ाउलक के ज़माने में, जब 14 मिलियन बेल्स हमारी हैं. उसके बाद से आज तक देखिए हमारे लिए अगर कॉटन अच्छा है, टेक्सटाइल अच्छा है, तो हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए था. मसला आ गया क्योंकि अब जब टेक्सटाइल सेक्टर ने कॉटन की डिमांड की तब उन्हें इंपोर्ट करना पड़ गया. इस वक्त यार्न भी इंपोर्ट हो रहा है, हमारा कॉटन इंपोर्ट हो रहा है. ठीक है, हमारे यहाँ प्लानिंग का बिल्कुल टोटली फुकदान है कि जिस चीज में हमारी स्ट्रेंथ है ना, हम उस पर कोई तवज्जो नहीं देते. बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ लेटेस्ट जो नंबर्स हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट के, करंट अकाउंट के, वो तो बेहतर है. कम से कम इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट के लिए कि किसी तरीके से करंट अकाउंट को मुस्तहकम रखें, अदरवाइज आपके इंटरेस्ट रेट और दूसरे सारे एक्सचेंज रेट के ऊपर असर पड़ता. यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल हम देख रहे हैं कि देयर इज अ फ्लॉ दैट नीड्स टू बी करेक्टेड. यस, देखिए बात ये है कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है जो कोविड हमारे पास आया. उसमें अल्लाह ताला ने हमको, देखिए दुनिया में कितने चीज़ें कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट हमारी अल्लाह का शुक्र है एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है. देखिए ये जो स्ट्रक्चर, हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है. 6 महीने के बाद क्या करेंगे हम? आज हम 5 महीने तक बुक हैं, 6 महीने के बाद क्या होगा फिर? लेकिन हमें सिस्टम को जब चेंज करेंगे ना, तो फिर हमारा सिस्टम हमेशा उसी तरह लेके चलता रहेगा उसको. वी नीड टू चेंज, वी नीड टू ब्रिंग बेसिकली रिफॉर्म्स, और ड्रास्टिक किस्म की रिफॉर्म्स लानी पड़ेगी. लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी. हमारे यहाँ शॉर्ट रेंज होने चाहिए थे, मीडियम रेंज लॉन्ग होने चाहिए, फिर हमारे पास लॉन्ग रेंज के ऑब्जेक्टिव्स
ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स होने चाहिए हमारे पास कि भाई हमने आगे पूरे मुल्क के लिए 15 साल 20 साल 25 साल हमने कहाँ जाना है हमने। तो हमें देखिए हमारी स्ट्रेंथ टेक्सटाइल है, हमें बजाय ये कि तीसरे नंबर पर आते चौथे से हम पांचवें पर आ गए हम लोग। तो एक क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेंथ इज अगेन अ सब्जेक्टिव आर्गुमेंट कि स्ट्रेंथ आपकी टेक्सटाइल इसलिए है क्योंकि आप टेक्सटाइल को प्रेफर कर रहे हैं। जो फूड प्रोड्यूसर आता है वो बोलता है आपकी स्ट्रेंथ फूड प्रोडक्शन हो सकती है, जितना आप टेक्सटाइल से लेते हैं उतना हम आपको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इजंट इट? देखिए जी, आप पहले पूरा पाकिस्तान का जो है इकोनॉमी का मॉडल देखेंगे तो बेस करता है एग्रीकल्चर पे। जी बिल्कुल। और एग्रीकल्चर पे 4 मेजर क्रॉप हैं, 4 आपकी वीट है, कॉटन है, शुगर केन है, राइस है। हमने 73 इयर्स में इसके अलावा कोई हाई वैल्यू एडेड क्रॉप को प्रमोट ही नहीं किया। हमारे पास जो माइनर क्रॉप्स हैं जो बड़ी वैल्यू की हैं, जैसे क्यूमन सीड है, जैसे अभी मैंने चिली की बात करी गई, बड़ी महंगी डंडीकट जो कुंडी में होती है सिंध में, ये दुनिया की यूनिक किस्म की मिर्च है और बहुत पसंद की जाती है कोरिया में, आपके मैक्सिको में, सब जगह। लेकिन हमने उन माइनर क्रॉप्स को फोकस नहीं किया और पाकिस्तान में पॉलिटिकली 4 क्रॉप्स के पीछे लगे रहे। अब वो 4 क्रॉप से भी आपने उसको वैल्यूएशन सिर्फ आपकी हो रही है टेक्सटाइल में, कॉटन से आपने लिया वहां तो वैल्यूएशन हो रही है, लेकिन अगर आप टेक्सटाइल का रैंक देखते हैं ग्लोबली एक्सपोर्ट में तो वो 77 पे आता है। मींस कि हमसे बहुत सारे मुल्क जो है वो बेहतर काम कर रहे हैं। में भी सीजनल डिमांड है बाय द वे, सर्दियों में ज्यादा आप स्पेशलाइज करते हैं, ओवरऑल दूसरी। देखिए हमारा टेक्सटाइल में जो लैक कर रही है चीज वो ये है कि हमारा अपना ब्रांड आज तक नहीं बनाया। हमारे जो जितने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं वो लेबर कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। अभी जितने भी आपके ऑर्डर आए हैं वो जिस भी रीजन से आए हैं, लेकिन आपका कोई ब्रांड थोड़ी हो रहा है, वो तो मुख्तलिफ फॉरेन ब्रांड्स के लिए बना रहे हैं और उस पर आपको हार्डली कॉस्ट मिल रही है। फिर आपके पास वीट और जो शुगर केन है ये आपके ऊपर हमेशा बर्डन रही है। वीट में आप एक्सपोर्ट करते हो तो सब्सिडी देते हो हैवी, या फिर महंगी ग्रो करके ग्रोअर से महंगी खरीद के फिर कंज्यूमर को सब्सिडी पास करते हो। और इसके साथ ही शुगर केन ये आपके लिए टोटली आप पे बर्डन रही है टैक्स पेयर के ऊपर कि हमेशा सब्सिडी के उसमें रहते हैं और आपका टैक्स में जो है उसकी कंट्रीब्यूशन है नॉमिनल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सब्सिडी का हाईलाइट किया। ये एक तरह की एक माफिया है कि अशियाए खुर्दनोश की कीमत बढ़ा दें, वीट की कीमत बढ़ा दें, फ्लोर मिल्स बैठ के शुगर की कीमत बढ़ा दें, शुगर मिल्स बैठ के, एंड देन फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी मांगे और कीमत हाई रखें अच्छी खासी, वो सब्सिडी खुद खा लें एंड देन सप्लाई कर दें और माल होल्ड करके रखें। ये तो पूरा बिजनेस मॉडल है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो 2 पैनलिस्ट यहाँ पे आए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की हैं, मैं उसको जी प्लीज आगे लेकर के जाना चाहूँगा। पहले जो बैठे हुए हैं आपके लेफ्ट पे सर, इन्होंने बात की कि हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। आई थिंक ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे उससे पहले आपने बात की थी, आपने कहा था कि पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं वो डेफिनेटली स्टेबल हो गए। मैं इससे एग्री करता हूँ। आई थिंक गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म ये एक मुश्किल काम था एंड आई थिंक हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम है उसको क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने जो शिप ऑफ द इकोनॉमी है उसको स्टेबल किया है। लेकिन बात यह है कि अब उस कश्ती ने जाना किस तरह है अपनी डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ पे जो प्लानिंग का रोल है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और ये जो अभी हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की डिफरेंट टेक्सटाइल मिलों को रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए मिले हुए हैं कि हमारे कंपेटिटर्स इस वक्त ऑफलाइन है कोविड-19 की वजह से। जैसे ही कुछ बड़े ममालिक जो हमारे कंपेटिटर्स हैं ऑनलाइन आना शुरू हो जाएंगे, आप फिर से उसी किस्म के अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे हालात देखना शुरू हो जाएंगे, अनलेस कि हम इस पोजीशन पे कैपिटलाइज करें। खान साहब बैठे हुए, खान साहब ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मैं ये रीइटरेट करना चाहता हूँ जो इन्होंने स्पेशली जो इन्होंने बात की वैल्यू एडिशन की, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। इन्होंने कहा है कि देखें हम अभी तक वो 4 क्रॉप्स के मॉडल को लेकर के चल रहे हैं और अभी तक उस किस्म की वैल्यू एडिशन नहीं हुई कि आपकी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं बेसिकली फॉरेन प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स बना रही हैं। तो सवाल हमें ये पूछने की जरूरत है कि पाकिस्तान में मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं, हम ब्रांड क्यों नहीं बना सके पाकिस्तान में? वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ब्रांड नहीं बना सकते? आई थिंक यही क्वेश्चन मैं लूंगा। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है ज़ीशान मर्चेंट साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स कंसल्टेंट है, हमारे प्रोग्राम में आते भी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा ज़ीशान साहब, आपसे थोड़े से टफ सवाल आते हैं आज मेरे पास। ये जो बताइएगा एग्रीकल्चर में अगर जीडीपी फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 रुपए की प्रोड्यूस हो रही है, जीडीपी की कैपेसिटी है, डॉक्यूमेंटेड है अनडॉक्यूमेंटेड, कितना अभी डॉक्यूमेंटेड में दिख रहा है जीडीपी का रोल, जो कि हमें देखते हैं कि 20 से 22% ही डॉक्यूमेंट में आता है कि जीडीपी का ही है, लेकिन ओवरऑल टैक्सेशन की कितनी गुंजाइश मौजूद है, कितना अनडॉक्यूमेंटेड जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि इस वक्त जो है एग्रीकल्चरल जो सिस्टम, पाकिस्तान बेसिकली इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और हमारी जो मुल्क में जो बेसिक पैदावार जिस पे हम इन्हिसार करते हैं वो एग्रीकल्चर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर जो जो हमारी प्रोड्यूस होती है वो टैक्स आज तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकी। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो इस पे टैक्स लगाने का हक जो है सूबे को है और फेडरेशन को नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगी उस पे सूबे टैक्स लगाएंगे और अदर देन एग्रीकल्चर जो है वो फेडरेशन टैक्स लगाएगी। अब हर सूबे ने अपना अपना प्रोविंशियल एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो इनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें कोई खातिर खा टैक्स कलेक्ट नहीं होता क्योंकि कोई लोग टैक्स जमा करवाते ही नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे हो गया। फिर अब दूसरा ये है कि जो इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड हैं या जो एग्रीकल्चर से चलती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि कोई भी चूंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है फार्म टू मार्केट को, तो इसमें जो है किसान को जो है वो हमेशा नुकसान होता है और जो मिडिल मैन है वो इसमें हमेशा फायदा उठाता है। अब मिडिल मैन जो है वो किसान से जो है एक बहुत कम रेट पे जो है सारे साल की प्रोड्यूस को बुक करता है और फिर उसका जितना दिल चाहता है वो उसमें इजाफा करके जो है मार्केट में लेके आता है, और वो ना सिर्फ इन्फ्लेशन में इजाफा करती है बल्कि उसके साथ साथ चूंकि बीच में सिस्टम नहीं है तो लोग टैक्स विदहेल्ड नहीं करते। अब प्रॉब्लम इसमें जो है एक मजीद भी आती है कि कॉर्पोरेट सिस्टम जो है मुल्क में, हाँ एफबीआर जो है वो हर चीज को जो है वो कहता है कि विदहोल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन वो चूंकि नहीं हो पा रही तो इसलिए मुल्क में जो है टैक्स कलेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो किसी न किसी फॉर्मेट में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इन्फोर्समेंट होना जरूरी है। निशान साहब, अभी करंट गवर्नमेंट में एक तो हम पूरी पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट अभी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड भी बहुत सा काम होता है, कैश बेस्ड बहुत सारी क्रॉप्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फर्स्ट स्टेप कि जो इसको डॉक्यूमेंट? सारी चीज ये है कि जब तक आप इसको फार्म टू मार्केट में कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आएगा तब तक ना डॉक्यूमेंटेशन होगी, तब तक जो है आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। उसकी बड़ी सिंपल सी एक वजह ये ले लीजिए कि जब तक जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसको एक्सेस ही नहीं होगा और उसके साथ साथ उसको छूट नहीं मिलेगी तो वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ये आरती जितने भी आरती टाइप के लोग हैं वो इसमें बीच में मजे उड़ाते रहेंगे। और ये आरती का वही एक सेक्टर है कि जो आपके ना सिस्टम में आता है, ना वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को, ना वो टैक्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं। जान साहब, रिसेंटली जब हमने देखा एफबीआर ने काफी इकदाम उठाए डॉक्यूमेंटेशन के, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर, एसएमईज, छोटे एनटीएन होल्डर्स, जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया, एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर कम फोकस किया। इसकी क्या वजह है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि ये सब्जेक्ट ही प्रोविंस का है तो एफबीआर इस पे रोल फोकस कर ही नहीं सकती। अलबत्ता ये एफबीआर ने 2014 में एक अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक शिक मुतारिफ कराई कि जिसको भी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एग्रीकल्चरल इनकम दिखानी है तो वो उस वक्त तक उसको नहीं दिखा सकता कि जब तक उसने सूबाई एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ना दिया हुआ। उसके एविडेंस को वो अगर लगाएगा तो वो पैसा अपनी वेल्थ में ले जाके वाइट कर सकता है, अदरवाइज वो वाइट नहीं कर सकेगा। तो इस टाइप के बहुत सारे स्टेप्स इस वक्त जो है गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है। एक स्टेप इसमें ये लेना बहुत जरूरी है कि जो लोग जिनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले एक स्टेटमेंट और एक वो दें कि वो उस सेक्टर में या उस चीज में शोबे में अपना इनपुट नहीं देंगे, ताकि जो पॉलिसीज बने वो एक जनरलाइज पॉलिसीज बने और उस पे किसी का जो है इंटरफेरेंस ना हो। तब तो रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स भी हासिल हो सकता है। साहब, जो आपकी बातों से मैं अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अगर तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जो कि ये है, तो प्रोविंस के अंदर भी वही एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हुए हैं, तो वहां भी लॉ मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी।
देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो शुगर का सेक्टर है या जो ये वीट का सेक्टर है या जो ये चावल का सेक्टर है, पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान एक जमाने में एक्सपोर्टिंग कंट्री था, ना सिर्फ वीट का, चावल में तो हम पाइनियर्स में रहे हैं, और हमारा बासमती जो ट्रेंड रहा है, बासमती जो ब्रांड है वो तो बेहतरीन ब्रांड है दुनिया के ब्रांड में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, आज हम कॉटन इंपोर्ट करना लग गए हैं। हम शुगर एक्सपोर्ट करते थे, अब हम शुगर इंपोर्ट करने लगे हैं। हम वीट एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं गैप्स हैं, कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं, कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग है। अगर तो इस चीज को, यानी अगर गवर्नमेंट को आगे चलना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो ना सिर्फ इन पॉलिसीज को ठीक करने की जरूरत है, बल्कि अब वॉर फुटेज पे इस पे काम करने की जरूरत है। सिर्फ इमरान खान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, उसको एक प्रॉपर टीम की जरूरत है। उसको चारों सूबे के जो मेन प्लेयर्स हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको साथ देना होगा। अदरवाइज जो पाकिस्तान अगर नेक्स्ट लीग में जाना चाहता है तो ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। साहब टुवर्ड्स द एंड एक हम ये भी प्रॉब्लम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेक्शंस के ऊपर टैक्स लगा भी देते हैं, तो वो पूरा टैक्स पास ऑन कर लेते हैं कंज्यूमर्स पे। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट और पेचीदा लॉबी है कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम में लगा भी दें तो किसी न किसी तरीके से प्राइसेस बढ़ा के वो पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। देखिए होता क्या है कि जो भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टैक्स कोई भी खुशी से नहीं देता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो इंपोर्टर होता है जब भी वो कोई चीज इंपोर्ट करता है और सपोज कीजिए 100 रुपए पे उसको 6 रुपए टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स को प्राइस में इनबिल्ड करता है और अल्टीमेटली जो वो उसको खरीदार होता है उस चीज का, वो टैक्स का बर्डन उसे देना पड़ता है। हमारे यहाँ जो मुल्क में जो टैक्सेशन का रिजीम है, जिसको पिछले साल जो शब्बर जैदी साहब ने काफी हद तक चेंज किया है, इसमें मजीद चेंज करने की इस वक्त गुंजाइश है। और जब तक इस चीज को चेंज कर प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं होगी, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। गरीब पे ही टैक्सेस का बोझ बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो एक रिजीम नाफिज है वो विदहोल्डिंग टैक्सेस का है। यानी आप वो पानी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, आप डबल रोटी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। यानी हर वो चीज जो एक कॉमन आदमी की जरूरत है वो उस पर टैक्स दे रहा होता है, जो कि एक रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है। होना ये चाहिए कि जो जितना ज्यादा कमाए उसको उतना ज्यादा इनकम टैक्स देना चाहिए, और जो कम कमाए उसको टैक्स नहीं देना चाहिए। वो सिस्टम इक्विटेबल टैक्सेशन सिस्टम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारे टैक्स रेवेन्यूज कम कलेक्ट होते हैं, तो हर गवर्नमेंट ने पिछले आप 30-40 साल की गवर्नमेंट उठा के देख लें तो उन्होंने अपना इन्हिसार वो विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम पे ही रखा है। उन्होंने इसी के जरिए वो टैक्सेस को कलेक्ट किया है और अपने टारगेट्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाजन ये बताएंगे कि टोटल एग्रीकल्चर का जो आउटपुट बताया जाता है जीडीपी के नंबर्स में, वो अगर अज्यूम किया जाए कि जो डॉक्यूमेंटेड है तो ओवरऑल होगा कितना, हजम कितना होगा? अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंटेड एग्रीकल्चर का आउटपुट आता है वो लेट्स से 100 रुपए आता है, तो एक्चुअल है कितना? इट्स 2 टाइम्स। मैं आपको बड़ा आसानी से बता देता हूँ कि आपकी पैरेलल इकोनॉमी वो एटलीस्ट 1:3 के रेशो में चलती है। ठीक है। तो आप इस पे एक अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 100 रुपए डॉक्यूमेंटेड आ रहा है तो ये 300 और से ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स। यहाँ पे जरूरत यह है कि पॉलिसीज और इन्फोर्समेंट को प्रॉपर किया जाए, और उससे ना सिर्फ फायदे होंगे बल्कि गरीब को फायदा होगा, और जो अमीर जो ज्यादा कुव्वत इस्तिताअत रखता है उसको टैक्स देना चाहिए और उसी से टैक्स वसूल करना चाहिए। ठीक है, ऑन दैट नोट ज़िशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। अब अगेन शमसुल साहब आपकी तरफ आऊँगा कि 3 गुना ज़्यादा आउटपुट है। एक तो ये मसला, ये तो डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड का ऑब्वियसली टैक्स देंगे तो फिर डॉक्यूमेंटेशन में आना पड़ेगा। दूसरा ये कि प्रोवेंशियल भी और फेडरल का सब्जेक्ट नहीं है तो वो कुछ नहीं करेंगे, और प्रोवेंशियल का प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोवेंशियल में भी सारे जमींदार बैठे हुए हैं, तो उसका हल क्या है? देखें जी, आपकी जो पार्लियामेंट की जो कंपोजिशन है वो बेसिकली मेजॉरिटी तो एग्रेरियन की है। आप अगर ये ड्रीम करें कि एग्रेरियन अपने ऊपर टैक्स इंपोज कर देंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूं जो डूएबल है और इसी माहौल में ही है। पहले तो पाकिस्तान में सबसे पहले वज़ीर आज़म को ये करना चाहिए कि जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं और हाई वैल्यू,
उनकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। उसकी प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रही? वजह यह है कि आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अदारे हैं, उनको जो फंड मिलते हैं वो उनकी तनख्वाहों पे खर्च हो जाते हैं और वो कोई R&D नहीं कर रहे, और ज़्यादातर ये कर रहे हैं कि सीड कंपनीज के जरिए सीड लेकर आएँ। राइस एक्सपोर्ट पाकिस्तान से 4.2 मिलियन टन की एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसकी मेन वजह यह है कि उसका सीड भी आज जो है चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड। कॉटन का जो है आपने बीटी का एक्सपेरिमेंट किया, आपने लोकल सीड, इंडिजिनस सीड डेवलप नहीं किए। ये जो एल नैनो का भी सिस्टम आ रहा है, और उसके बाद आप अपना देखें कि आपकी वेदर की सिचुएशन कैसी है। इंपोर्टेड सीड हर वक्त कामयाब नहीं होंगे। आपकी जो वीट मुसलसल तीसरे साल में शॉर्ट हो रही है, अब जो क्रॉप आएगी वो भी शॉर्ट है। आज मैं आपको अभी से बता के जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो सीड जो है उस क्वालिटी का नहीं है, उसमें जर्मिनेशन वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। ग्रोअर जो है अपना या तो इन हाउस सीड लेता है या बोरो करता है अपने साथी से, और या फिर मार्केट में जाता है तो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, तो वो बहुत कम। इस दफा सीड भी तो ऑलमोस्ट 50% शॉर्ट हुआ। सबसे पहले एग्रीकल्चर देखें, आपका पोटेंशियली एग्रीकल्चर है। आप अगर ग्रोअर को टैक्स, एग्रीकल्चर को टैक्स ना लगाएं, मैं ये कहता हूं उनकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। जब वो प्रोडक्शन आए तो फिर आपकी वैल्यू एडिशन हो। इंसेंटिव ऐसा करें कि टोमेटो ग्रो करने वाले को 2 रुपए या 5 रुपए में टोमेटो ना बेचना पड़े, उसके टोमेटो जूस, टोमेटो पूरी, उसकी वैल्यू एडिशन की पूरी चेन हो। हमारे पास तो टोमेटो ग्रो होता है, हम सिर्फ हांडी में पकाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और क्वालिटी भी वो नहीं है कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए आपके पास मैंगो का अभी ऑरेंज का सीजन चल रहा है। पाकिस्तान में कितनी कंपनीज हैं जो कंसंट्रेट ऑरेंज की एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सारे किन्नू डब्बे में 10 किलो का भरा और एक्सपोर्ट कर दिया। इसको कहते हैं कि ये कमोडिटी ट्रेड है। कमोडिटी ट्रेड से बेनिफिट वहां ग्रोअर तक नहीं जाता। आपकी इंडस्ट्री कर सकती है। आप अगर एकदम से ग्रोअर पे लगा दोगे, तुम्हारे इतने एकड़ जमीन है और मैं ये टैक्स लगा दूंगा, वो भी छोड़ जाएगा। क्योंकि आपको एक पता होना चाहिए कि ग्रोअर के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये हो रहा है कि वर्क फोर्स जो है ना, उसकी लेबर जो वहां पर जो गांव में देहात में वो कम होती जा रही है। वो तो कोई टर्की, कोई ईरान, कोई यूरोप, कोई कहां से कहां निकलता जा रहा है, वो बेचारा काम करता नहीं है। ये जो शुगर केन आपकी बढ़ी है प्रोडक्ट और कॉटन को रिप्लेस किया, उसकी मेन वजह ये नहीं कि उसको बहुत ज्यादा प्राइस गन्ने से मिल रही है। गन्ना तो $30 पर टन उसको वो बेच रहा है। कॉटन की वैल्यू एडिशन हाई थी। वजह क्या थी कि उसको कॉटन पिक करने के लिए लेबर चाहिए, वो लेबर नहीं है। आप देहातों में जाएं, सिंध से शुरू हो जाए पंजाब तक, आपको सारी औरतें नजर आएंगी जो सुबह चाटी से लस्सी भी बनाती हैं और जाके कपास भी चुनती हैं। वर्कर वहां पर मेल वर्कर नहीं है। आपको मैकेनाइज्ड जो है आपकी हार्वेस्टिंग का सिस्टम लाना होगा और आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है ताकि वो प्रोडक्शन बढ़े और फिर वैल्यू एडिशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल वैलिड सजेशन सर बताइए। नहीं देखिए, प्रोडक्शन जस्ट बात यह है कि बात वहीं आ जाती है कि हमारे यहाँ जो R&D का फुकदान है, कोई ऐसा थिंक टैंक आज तक कभी नहीं बनाया हमने, कोई ऐसी टास्क फोर्स आज तक नहीं बनाई हमने कि जो पॉलिसियाँ भी बनाते रहे पहले, वो पॉलिसीज़ बनते रही कट पेस्ट करके। ठीक है, पिछली गवर्नमेंट ने बनाया, खुश कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने ये जी ट्रेड पॉलिसी बना दी, हमने एग्रीकल्चर पॉलिसी बना दी, हमने टेक्सटाइल पॉलिसी बना दी, सब कुछ कर दिया। पिछले दौर में भी पॉलिसी बनी, टेक्सटाइल पॉलिसी बनी, 5 साल पता नहीं चला भाई कौन से लोग थे, किसने इंप्लीमेंट किया, क्या पॉलिसी थी, पता ही नहीं है क्या हुआ टेक्सटाइल पॉलिसी का। इसी तरह ट्रेड पॉलिसी, हमारे जो चीज़ें बनती है, देखिए हमें कोई नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मुझे पता है कि साथ वाला मुल्क जो है वो इससे यील्ड अच्छी ले रहा है, तो देयर इज नो हार्म इन इनवाइटिंग दोज एक्सपर्ट्स टू पाकिस्तान कि भाई हमें गाइड करो। आप उनको हायर कर लें, आप उनसे गाइडेंस लें। आप बहुत सी चीजें करने की जो हम कर सकते हैं। हमने कॉटन ग्रो क्यों नहीं ज्यादा की हमने? और कि देखिए गन्ना जो है ना, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। मैं इसकी इतना सख्त खिलाफ हूँ यकीन जानी कि ये हमारा पानी भी ज़ाया करता है और प्लस ये स्टेपल फूड नहीं है। हमें दूसरी चीज़ों पर जाना है, वैल्यू एडेड में जाना जरूर है। देखिए जितनी एग्रीकल्चर लैंड हमारी, वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएं। गवर्नमेंट को चाहिए उनको जो लोन्स दे उनको बिल्कुल नॉमिनल उसके इंटरेस्ट पे दे कि जहां एग्रीकल्चर लैंड है, फ्रूट्स की हैं, वेजिटेबल्स की हैं, वहां प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे। एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेशन देनी पड़ेगी आपको ग्रोवर्स को, इन लोगों को, ताकि एक्सपोर्ट हो। बहुत ही वैलिड पॉइंट नाज़रीन। अब अकदस एक हमने रिसेंटली देखा कि 5 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी गवर्नमेंट ने, जब भी ये लोकस आया और उन्होंने कहा कि भाई कोविड के बाद यहाँ से थोड़ा सा फार्मर इनकम बढ़ाई जाए, थोड़ी सी चीज़ें और बेहतर। ट्रैक्टर्स के ऊपर सब्सिडी दी, फर्टिलाइजर के ऊपर काफ़ी सब्सिडी दी है अभी काफ़ी उसकी वजह से, बिकॉज दे आर फीलिंग कि यहाँ से 3-4 महीने दे हैव टू इंक्रीज द आउटपुट फॉर द इकोनॉमी। लेकिन यहाँ मसला अभी भी वहीं बाकी है कि प्रोडक्टिविटी इज अ बिग इशू। ओके, मैं वेट कर रहा था कि आप कब मेरी तरफ आएंगे, क्योंकि मुझे 2-3 पॉइंट्स स्ट्राइक किए और इसी कॉन्वर्सेशन से वो मेरे जहन में आए। देखें जो पैनलिस्ट ने पॉलिटिकल इकोनॉमी रीजंस की तरफ इशारा किया है कि देखें अगर लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग बैठे हुए होंगे तो वो अपने ऊपर टैक्स लगाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है उनका, मतलब वो कहते हैं, आप कह सकते हैं, आई मीन द प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी लेस।
تو دیکھیں اس میں ایک اور پولیٹیکل اکانومی ریزن جس کی پاکستان میں کوئی بات نہیں کرتا لیکن بات کرنی چاہیے، اور وہ ہے، اور میں یہ رکھنے لگا ہوں یہ پوائنٹ یہاں آپ کے پروگرام کے وساطت سے، اور وہ ہے ایگریکلچر لینڈ ریفارم کی بات. اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں اونرشپ آف ایگریکلچر لینڈ، میں نے اسٹڈی دیکھی ہے جس میں تقریباً 10% آف آور پیپل اون اباؤٹ 80 اور 90% آف دا ایگریکلچرل لینڈ. یہ دنیا میں سب سے اسکیوڈ اونرشپ پروفائل ہے آلموسٹ. صحیح ہے. آپ کا جو گروور ہے، جو جس کے ہم چھوٹے کسان کی بات کرتے ہیں، وہ کوئی بڑے کاشتکار نہیں، وہ 5 ایکڑ سے کم پہ وہ کاشت کر رہے ہیں، اور ان کی نیڈز ہیں پیسٹیسائڈ، ڈیزل، سیڈ، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اگر آپ باقی کنٹریز کا ایگزامپل لیں، جاپان کا ایگزامپل لیں، تائیوان کا ایگزامپل لیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کنٹریز کی فینٹاسٹک یا اسپیکٹیکولر اکنامک گروتھ کا ایک ریزن تھا ان کی ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کا ایک راکٹ کی طرح اوپر جانا. لینڈ ریفارم کا یہ اسی پہ آپ سے ایک کاؤنٹر کوشچن پوچھوں گا، اٹس ویری امپورٹنٹ، کہ یہاں پہ جو چھوٹا کسان ہے اس کو ایکسس ٹو فائنینس بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ریٹین ارننگز بھی نہیں پڑی ہوئی. جو بڑا کسان ہے وہ اس کو اکانومیز آف اسکیل کی بات کریں نا، وہ جو بڑے پیمانے پہ کاشت کرواتا ہے تو کچھ نہ کچھ اسے بچ ہی جاتا ہے، تو وہ انسینٹیوائز ہی نہیں ہے اپنا کہ وہ پروڈکٹیوٹی دکھائے. اسے پتہ ہے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں میں، اربوں روپے میں یہ ویسے ہی آ جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ اتنی لینڈ تو یہاں چلی گئی. آپ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا، آپ جو بات کر رہے تھے، لیکن جو میں اور چھوٹے کسان کو جاہل رکھا. میں جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نا، وہ یہ تھا کہ تائیوان اور جاپان کی اکنامک گروتھ کے پیچھے وہاں ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کا اوپر جانا ہے، اور وہاں سب سے امپورٹنٹ چیز سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوئی ہے، ایگریکلچرل لینڈ ریفارم. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو گروور کلٹیویٹر ہے وہ اس کے پاس اونرشپ بھی ہو، تاکہ وہ اس لینڈ کی ٹیک کیئر بھی کرے، اس میں وہ سارے انپٹس بھی لگائے. کوشچن یہ ہے فائنل پوائنٹ کیوں ہوگا یہ؟ تو وہ ٹیکس والی آپ نے ان کو ٹیکس لے لیتے، اس سے بڑا ان کو بول دیا کہ اپنی زمین بھی دے دو. بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ایگریرین پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ ان سے بولے آپ ٹیکس دے دو، پھر آپ بولے ان کی زمین بھی دے دو. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک زمانے میں کچھ کرپٹ لوگ بھی تھے پارلیمنٹ میں، اور ہم سمجھتے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن، یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اور کرپشن چلے گی. لیکن جب کسی آئیڈیا کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. Do you think now is the time? Absolutely. Do you agree? دیکھیں جی ٹائم ہے چینج کا، لیکن ہمارے مائنڈ سیٹ ایسے ہیں جو اگر آپ پالیسی مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. میں وہی آ جاتا ہوں. دیکھیں پالیسی کے اوپر کہ پالیسی کون بناتا ہے، وہ بیوروکریٹ جس کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ منیمم سپورٹ پرائز دینی ہے اور سبسڈی دینی ہے. ان دو کے باہر وہ یہی فارمولا گھوم رہا ہے پچھلے 30 سال. آپ کی منیمم سپورٹ پرائز سے جو ہے آپ کا گروور بہت بری طرح متاثر ہوا. 1400 روپے میں گندم خریدی آپ نے، آج اس کا جو ہے 6000 روپے 60 روپے کلو ہو چکی ہے، وہ 6000 کا ریٹ پہنچ گیا. گروور کو ملا نہیں، گروور نے ویٹ گرو کی لیکن اس کو فائنینسنگ نہیں ملتی، اس کے بعد مڈل مین لیتا ہے تو اسی کو وہی بینک فائنینسنگ کر رہا تھا. یہ آپ کے ڈسٹورشنز ہیں. آپ کے پاس پاسکو کا بہت بڑا سسٹم ہے ویئر ہاؤسنگ کا، آپ نے اس کو صرف اس لیے یوز کیا ہے کہ گروور سے ویٹ خریدو، ہولڈ کرو. آپ اٹ سیلف گورنمنٹ ہولڈر بن جاتی ہے. جب گورنمنٹ ہولڈر بنے گی تو ایک بہت بڑا چنک جو ہے ویئر ہاؤس میں رکھا ہوگا، تو پھر مارکیٹ میں جو ٹریڈنگ سرپلس ہوتا ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے، پرائز بڑھتی ہے. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اس پوری پالیسی کو چینج کرو کہ آپ اب آئندہ کوئی اسٹاک گورنمنٹ اپنے پیسوں سے خرید کے نہیں رکھے. اسٹیک ہولڈر سے کہے جی آپ یہ گروور نے گرو کیا ہے، آپ جاؤ مارکیٹ سے خریدو، جتنا خریدو گے اس کا 10% ویئر ہاؤس میں رکھو گے پاسکو کے، اور رینٹل بھی آپ دو گے. گورنمنٹ کے پاس یہ اسمارٹ اسٹاک پائلنگ کا پروسیس ہے. دنیا میں بہترین کنٹریز نے اکانومیز نے یہ رکھا ہوا ہے. پاکستان 1 روپیہ نہیں لگاتے، اور پاکستان میں اگر گورنمنٹ کوئی اسٹاک خریدتی ہے تو لاس کرتی ہے. مرکنٹائل ایکسچینج کچھ ایسا کر رہی ہے کہ ویئر ہاؤس دنیا کو میں بتاؤں، یہ مرکنٹائل ایکسچینج، کموڈٹی ایکسچینج دنیا کو برباد کرنے والے کموڈٹی کا ابھی آپ بات کرتے ہیں کہ ویلیو اس میں چلا ہوا انجینئرنگ میں جائیں. فیوچرز مارکیٹ ہے، میں فیوچرز کی بات نہیں کر رہا. دے آر آلسو بلڈنگ ویئر ہاؤسز. آپ کی جو مہنگائی دنیا میں آئی ہے ان کموڈٹی ایکسچینج کی وجہ سے آتی ہے. آپ نیچرل دیکھیں آپ کا سسٹم کیا ہے. آپ اس سسٹم میں بیٹھے ہو کہ جہاں پر آپ کا گروور جو ہے اس کی تو لٹریسی ریٹ ہی بالکل نہیں ہے. ہم نے تو نام لکھنے والے کو لٹریٹ کہہ دیا، اس کو 60% بنا کے رکھ دیا. وہ گروور جب تک ایپس یوز نہیں کر سکے گا، گروور اسمارٹ موبائل فون نہیں دیکھ سکے گا، ویڈیو دیکھنے کے علاوہ سرچ نہیں کر سکے گا، تو گروور ڈیولپ نہیں ہوگا. آپ کو گورنمنٹ کو پہلے اس کو دے دو، اس کا سیڈ چاہیے، وہ سیڈ سو کرے تو اس کا جرمنیشن 100% دو. پھر اس کو یہ دو کہ آپ مارکیٹ جو ہے اس کی 1 گوٹ 1 گاؤں ایک، اور اس کی انڈسٹری وہاں لگا دو. چائنا کا ماڈل کیا ہے
चाइना ने जो गांव फैले हुए थे उनको वर्टिकल बना दिया, कॉन्डोमिनियम वहां पे हो गए, वहां पे जिम बन गए, वहां स्विमिंग पूल हो गया, और वहां पर जो जमीन बची हुई थी उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर भी हो रही है तो साथ में इंडस्ट्री भी लगी हुई है, कनेक्टिविटी बेहतर कर दी। आप उस मॉडल को लो, चाइना का मॉडल हमारा जो है एग्रीकल्चर का, आप इकोनॉमी को देखोगे वो भी यही था, वो भी एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुए, आज इंजीनियरिंग में है। हम अभी तक 73 साल से एग्रीकल्चर पे खड़े हैं और उसमें भी 21%, 19% की जीडीपी में ग्रोथ है, तो कैसे होगा? डू यू एग्री? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, लेकिन मैं एक चीज़ से, देखिए बात ये कि हमारा वो कल्चर नहीं है एग्रीकल्चर का, जो फार्मर है ना, क्योंकि जो पास्को के बनाए गए वेयर हाउसेज वो इसलिए बनाए गए कि ताकि ग्रोअर को उसके सही प्राइस मिल जाए। अच्छा, ये जो नाहली होती है ना, वो ये होता है कि देखिए गवर्नमेंट का काम होता है कि ग्रोअर से वो वीट को खरीद के पास्को में पहुंचे। अब अगर मैं करप्ट हूं ना तो मैं ग्रोअर से खरीद ही नहीं रहा, वो सड़ जाती है, गंदो। मैंने खुद देखा है वेयर हाउसेज, मैंने सिंध में देखा है, आप यकीन जानिए जो सिंध में प्रॉब्लम कि हमारी वीट का क्यों मसला है, वजह ये हुआ है कि जानते बूझते वो ग्रोअर से नहीं खरीदेगी जो वीट थी, वो सड़ गई ताकि सप्लाई। जी देखिए, गवर्नमेंट के पास जब है ही नहीं, स्टॉक नहीं है, आपको पता है कि सप्लाई डिमांड का खेल है ना, जब सप्लाई कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई, तो आपके प्राइस बढ़ गए। तो ये जानते बूझते, देखिए इसको पोलिटिसाइज कर दिया जाता है। जैसे चीनी का शोर है, इसी तरह वीट का शोर है। वीट ग्रो आप टाइम पे खरीदें, पास्को में दें, उसका आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि यार हु आर द पीपल आर इन्वॉल्व्ड, इफ इट्स नॉट बीइंग डन, सो हमें उनको आप पेनलाइज करें उस चीज को कि क्यों नहीं हुआ चीज ये। आप उसको डिस्टॉर्शन कह लें, आप उसको करप्शन कह लें, बिल्कुल हो क्या रहा है। अब जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग दैट इनटू पर्सपेक्टिव कि कुछ एग्रीकल्चरिस्ट लैंडलॉर्ड्स जो कि कंट्रोल करते हैं अच्छी खासी जमीन का, वो पार्लियामेंट में भी है, उनकी शुगर मिल्स में भी है, रीजंस है ना, सही है। अब वो कर क्या रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी रीजन नहीं है, नाउ दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द सप्लाई विद इन द होल मैकेनिज्म वेयर बाय यू बाय दीज क्रॉप्स। दे एक्चुअली व्हाट दे एक्चुअली डू इज कि आपसे वो खरीदते ही नहीं है वेयर हाउस में, और आप लाइनें लगा के खड़े होते हैं शुगर केन की, फिर आप कम कीमतों पे देना चाहते हैं, फिर वो लेके उसको भी होल्ड करते हैं, और फिर कीमतें बढ़ती हैं तो वो आगे सब्सिडी के साथ बेचते हैं आगे। सिंपल इक्वेशन। आप जो किलिंग बना रहा है ना इस सारे से, वो मिडलमैन भी तो बन गया। और वो जो मैंने इसके ऊपर एक जमाने में आज से कुछ 10 साल पहले पंजाब में एक स्टडी की थी वीट के ऊपर, तो मैंने ये देखा कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें भी बहुत सी डिस्टॉर्शंस थी। अब आप जैसे डिस्टॉर्शन कह लें, करप्शन कह लें, एक थैला होता है जो सरकारी तौर पे मिलता है, उसको कहते हैं बारदाना, exactly. तो वो स्टैम्प्ड होता है, तो सिर्फ जो ग्रोअर है ना वो उसमें भर के ग्रेन बेच सकता है। अब वो क्या होता है कि वो बारदाना ही नहीं मिलता लोगों को, तो उधर से ग्रोअर को दबाते हैं कि वो आपको सस्ता बेचे, वहां से एक आर्टिफिशियल उसकी एक डिमांड क्रिएट करते हैं ताकि आगे वो महंगा जाए। सिर्फ जो मिडिल मैन है ना उसके पास ये मसल है, उनके पास ये मसल है कि वो ये गेम खेलें, तो ये क्रिमिनल। और पकड़ेंगे कैसे आप उनको? वो तो लेजिस्लेशन आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए कि वो एफआईए को ये टास्क दें। यस अभी एफआईए का काम है। सिंध गवर्नमेंट में और अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काफी छापे आपने देखा तो सही कर रहे हैं, बिल्कुल। बहुत सारी वीट जो होर्डिंग हुई थी वो निकाली गई, निकली ना, मार्केट में कीमतें बढ़ा के रखी हुई हैं और तो हजारों बोरियां रखी हुई हैं। बाकिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं हो रहा, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, मतलब वही मैनिपुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन। और बहुत से कंट्रीज में इसकी बहुत सख्त सजाएं हैं। तो आई थिंक हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, आई थिंक दे विल हैव टू स्टेप अप टू द प्लेट। बिल्कुल सर। आपका जो देखें, आप एग्री करोगे मेरी बात से, पाकिस्तान की इकोनॉमी का मॉडल क्या है? हौज पौज इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी ये गवर्नमेंट को बिजनेस करना चाहिए। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप ओपन मार्केट रखें, रेगुलेटेड रखें। रेगुलेटेड भी इन सेंस कि आपकी जो चीज इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, उसका एक आप लाइसेंस बनाओ, उसकी एक डेटाबेस रखो, पोर्टल पे रखें, ताकि आपको पता हो कितनी चीज एक्सपोर्ट हो गई, कितनी आ गई, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। हमारे यहाँ ये नहीं है। जब हौज पौज इकोनॉमी में हम चल रहे हैं और उसमें फिर कार्टल्स बनते हैं। आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं माफियाज, तो माफियाज इतने ज्यादा हो गए कि आप तो बैंक्स ने भी कार्टेल बना लिए हैं, वो भी आपको जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए पुश कर रहे हैं, हालात ऐसे करते हैं, तो इस तरह से आपके चीनी निकालेगा। और इस सारों को ठीक करने के लिए कोई डंडा नहीं चलता। दुनिया में बेस्ट स्मार्ट पॉलिसी से ये सारी करेक्शंस होती हैं। अगर आप दुबई देख लो, आप सिंगापुर देख लो, या और कंट्रीज में देख लो, तो वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं होता कि जाके छापे मार रहे हैं। यहाँ तो डीसी को पावर दी हुई है ना कि जाके आप प्राइस, वो डीसी जो है जिसको पावर है वो अपनी प्राइस लिस्ट 6 महीने में अपडेट नहीं करता। ये फॉल्टी मैकेनिज्म हो चुका है। कॉलोनियल एरा में हम बैठे हुए नहीं है। हमें नेचुरल मार्केट फोर्सेज को कंपीट कराना है, और वो मार्केट फोर्सेज को क्या सके, यहाँ पर यदि शुगर को अगर प्रोटेक्शन दे रहे हो, इंपोर्ट करने नहीं दे रहे, अगर महंगी होती तो महंगी होती चली जा रही है, आप इंपोर्ट भी खोलो, एक्सपोर्ट भी खोलो, बैलेंस करो, ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर खत्म हो जाएगा।
होर्डर उस वक्त मार्केट में आता है जब देखता है कि गवर्नमेंट के पास स्टॉक्स कम है। जब गवर्नमेंट ये काम करना छोड़ देगी और मार्केट में फ्री कोई प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हो, गंदम की मैं मिसाल देता हूं, आपके ग्रोअर को जो 1400 मिली थी उसको आज 1600 भी मिलेगी, 1800 भी मिलेगी, 2000 भी मिलेगी, वो मार्केट के ऊपर चलेगा। फिर आपका जो वीट से सिर्फ वीट फ्लावर नहीं बने, उससे आप अगर वीट की नूडल्स भी बना रहे हो, मैक्रोनी भी बना रहे हो, इटली का क्या मॉडल है, वो दुनिया से इंपोर्ट करता है और कितने बिलियंस की वो एक्सपोर्ट कर देता है। हमारे पाकिस्तान में जो वीट को पास्को रखती है वो इन्फेस्टेड हो जाती है। आपका आटा बनता है, 15 दिन के बाद आप किचन में जाके देखिएगा उसके अंदर सुसरी आ जाएगी, उसको फ्यूमिगेट प्रॉपर नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी कि प्राइवेट सेक्टर को जब आप कहोगे जी आओ मार्केट से खोलो, फ्लावर मिल वाले ने अगर 1000 टन माल खरीदना है उसको 10% वेयर हाउस में रखना है पास्को के, मिलर ने अगर आपके वैल्यूएशन करने वाले लेना है वो अपना स्टॉक रखेगा। इससे क्या होगा कि फिर मैं साइलोज लगाऊंगा, मॉडर्न जो आप कॉर्पोरेट की बात करो ना, कॉर्पोरेट कल्चर भी जो फार्मिंग में है वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं होगा। फिर अभी आप करीब देखें पड़ोस में इंडिया में क्या हो रहा है, ग्रोथ कहां तक पहुंच गए। आपको एक ऐसा करना है, इंसेंटिव देना है कि इंडस्ट्री जो है वो वहां पहुंच जाए जहां पे ग्रो हो रहा है और वहीं बैठ के वो साइलोज डेवलप करे। मॉडर्न साइलोज होंगे तो आपकी वीट की स्टोरेज प्रॉपर होगी, उसकी फ्यूमिगेशन प्रॉपर होगी। आज आप वीट जो है जूट बारदाने के बजाय प्लास्टिक के उसमें बैग में लेते हो, वो और उसको टॉक्सिन है उसके अंदर, अगर आप साल 2 साल रखते हो वीट तो आपकी तो जहरीली हो जाती है। ये टोटल फॉल्टी सिस्टम आपने लेके बैठे हुए। शमशेद साहब, ये जो फ्री मार्केट मैकेनिज्म है ये गवर्नमेंट लाने की कोशिश तो कर रही है, अभी इस सेक्टर को छोड़ा हुआ है, अभी वो खासतौर पे पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर ला रही है। पहले तो वो पॉलिसीज रिवाइज कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को उन्होंने कहा थोड़ा डीरेगुलेट करें, प्राइसिंग को डीरेगुलेट करें, फिर पावर प्रोडक्शन को डीरेगुलेट कर रहे हैं, मार्केट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट नहीं पावर खरीदे महंगी, आप जिसको प्रोड्यूस करना है वो डिस्ट्रीब्यूटर को भेजो। पूरा हर सेक्टर के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट मैकेनिज्म है जो कि चलता चला आ रहा है। आई थिंक इट विल टेक टाइम। कार्टेल्स ने ये किया हुआ है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे स्टॉक्स पे, फिर उनसे सस्ता सब्सिडी पे कार्टेल है वो अपनी कमाई करे। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू 4 जगह से आता है, 5वीं जगह उसके पास नहीं है, और उसको भी लाके अगर आप सब्सिडी को देखो तो लीकेजेस कितनी हो रही है आपकी, तो सब्सिडी दे के और लॉसेस करके पब्लिक सेक्टर के, तो गवर्नमेंट कैसे बैलेंस कर सकती है? तभी वो खान साहब कहते हैं कि वो माइनस 500 अरब 600 अरब से चलते हैं, क्योंकि आपका अगर टैक्स इकट्ठा कम हो रहा है और ऊपर से आप सब्सिडी दे रहे हो अनटारगेटेड। एक अमीर आदमी को जो 2000 गज के घर में रह रहा है वो भी बिजली सस्ती ले रहा है, वो भी उसी गंदम की सब्सिडी को एंजॉय कर रहा है, तो उसका क्या टारगेटेड सब्सिडी। और आपको जो है स्मार्ट पॉलिसी लानी है, सब मार्केट में ये सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, आप सिर्फ ट्राई करो। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी आर जस्ट कमिंग टू द कंक्लूजन। आपके बिल्कुल लास्ट फाइनल रिमार्क्स फारूक साहब। देखिए, जो मैंने पहले बात की थी, अभी इन्होंने वही बात की कि आपको ग्रोअर के पास जाके इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। देखिए, उससे आपके जो लॉजिस्टिक्स हैं वो कम होंगे और उस इलाके में आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड्स के करीब सारी ये प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे एक्सपोर्ट के, ये बेहतर होगा। आई गॉट योर पॉइंट सर। बिल्कुल लास्ट वन सेंटेंस सर, क्विकली। मैं बस ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक ट्रिमेंडस पोटेंशियल है हमारी इकोनॉमी में, और सारी जो डिस्टॉर्शंस हम फेस कर रहे हैं, आई थिंक इस गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि इन डिस्टॉर्शंस को On that note, खत्म कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब अपने प्रोग्राम में शामिल होने का। शमशुल इस्लाम साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। फारूक साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आज डिस्कस किया गया। आई होप कि अरबाब इख्तियार इसको सुन रहे हैं और इस पर अमल करेंगे, सप्लाई साइड डिस्टॉर्शन को ख़त्म करेंगे। जो एग्रीकल्चरिस्ट बड़े ज़मींदार हैं, जिस तरीके से प्राइसिंग को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल किया हुआ है, इस पे काबू पाएंगे, इनोवेशन लाएंगे, तभी आप इन्फ्लेशन पे लॉन्ग टर्म में काबू पा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।